There you have it, the final moments. Unstoppable India. New Zealand all over this chase. Unfortunately, they could not garner momentum against that outstanding Indian bowling attack today. We're going to talk all about it. A very happy Rohit Sharma. But now we have a clear picture on who the semi-finalists are, actually who's going to play who and where. Good evening and welcome to the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Anam. You're watching 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. India has won yet another game in this ICC Champions Trophy and look unstoppable. And let's take a look at the match summary first up. This is how it is. New Zealand winning the toss today, and they decided to bowl first. India putting up 249 for the loss of 9. It looked like as if this was not a good enough total. But turns out it was actually a very, very challenging total. India winning this one by 44. Williamson showing resistance, trying to push, but unfortunately it wasn't enough. He was losing partners on the other end. And the captain, Santner, kind of giving him a little stand, but unfortunately this was not the day for New Zealand. Big congratulations to India as they win another game in this ICC Champions Trophy by 44 runs. With me in the DP World Dressing Room, I've got four fantastic panelists. Let me bring them into the conversation. First up, I've got an off-spin bowler, batsman, dashing fashion guru, and has represented India proudly with us in this journey of the DP World Dressing Room, Nikhil Chopra. Nikhil, good evening and welcome. Good evening, sir. Good to have you here. Next up, folks, I've got the legend himself. The vocabulary shall remain the same. So I would say, like I always do, toe-crushing, batsman terrorizing, golf swinging, Nolaka of the DP World Dressing Room, Waqar Younis. Waqar, good evening and welcome. Hello, sir. Good to Hello, see you how are again. you? Yeah, good. Cricket royalty amongst us, gracing cricket grounds around the world, leaving a mark on the cricketing history. The man captained Pakistan and proudly represented Pakistan and gave us some great memories. The Sultan of Swing, Wasim Akram. Wasim, good evening. Assalamu alaikum and welcome. Wa alaikum assalam. And finally, another outstanding gentleman, played many great innings for India, representing his country proudly, giving them a lot of memories, and has been kind enough to be joining us in this dressing room. We've got Ajay Jadeja. Jadubaji, welcome. Good evening. Good evening. Great, and congratulations. India wins yet another game. Unstoppable. Unstoppable, they are. You got to say that, because they were in a bit of bother when they were batting. They held their nerves, and especially Hardik Pandya right at the end, lone warrior at the end, and took that total to a place where they could fight. And then the bowlers were amazing. I thought New Zealand probably, tried a bit too hard at the start of the innings to block away. And at the end, they were left with 5 overs to spare. Yeah, it is incredible there by India again, Wasim. जितनी भी तारीफ की जाए कम है इंडियन टीम की 6 में से 6 मैच जीते हैं 3 इंग्लैंड के खिलाफ 3 ये और इनका रिकॉर्ड अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी और चैंपियंस ट्रॉफी मिला के देखें 14 में से 13 मैच जीते हैं सिर्फ एक हारे हैं वो भी फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दैट शोज द डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम इटसेल्फ एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंस भी है और पता है और विकेट रीडिंग भी ठीक की 4 स्पिनर खिलाए काफ़ी ने कहा लोगों ने कि 4 स्पिनर नहीं बनते एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए बट आई थिंक जरूरत ही नहीं पड़ी एंड में नहीं पड़ी नहीं मैं देख रहा हूँ मेरी बाल देख रहे नहीं absolutely right. I mean they read it better than at least the ones who are doing pitch report. Yeah, all right, let's take a look at the standings now. This is how the semi-finals are loaded for you. Do pehla 4th ko, dusra 5th ko. This is how the points table is ending in Group A. India right on top, New Zealand at number 2. And then we can take a look at the Group B points table as well. 6 points for India. That's incredible. New Zealand. And the first semi-final that will be here. This is Group B. And you can see South Africa, they're 5. So India did qualify in their pool with 6 points. Here, South Africa with 5, Australia with 4. Afghanistan go home with 3. England got no points. That's how this is. This is the semi-final now. This is the first semi-final. Dubai se aapke liye barah raast aayega. It is India versus Australia. This is going to be the first semi-final on the 4th of March. And then the second semi-final is South Africa versus New Zealand. And that will be live from Lahore, Gaddafi Stadium on the 5th of March. So, 4 तारीख
और 5 तारीख, 4th and 5th of March, you have the two semi-finals locked and loaded. Now we know who plays who at what venue, and that gives all the teams now a clear picture on how they have to prepare for this semi-final. If I'm South African team, I'll be very upset right now. Yeah, because they have to fly back to Lahore now to play the semi-finals. Yeah, and New Zealand also going back as well. न्यूजीलैंड में जाने जाना था उनका तो सेमीफाइनल वहाँ पहले पक्का था ना, अगर पहुंचते हैं तो वो वहीं खेलेंगे. बट साउथ अफ्रीका दे ट्रैवल्ड है yesterday, ऑब्वियसली दोनों टीमें आई हैं इसीलिए कि ताकि एक दिन प्रेपरेशन का तो मिल जाए, कल का दिन प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा ग्राउंड में फील्डिंग कर लें, थोड़ा climatize is probably not the word, but you know what I mean. You need to want to relax be a bit. a little familiar. Day before and get into the big game like semi-final and a knockout game. Yeah, absolutely. Does India carry this momentum into the semi-final and all the way to the final? Because it looked like they had all the momentum in the World Cup 2023, and then right in the last game, Australia kind of just came in and shut it down. Yeah, this can happen in cricket. Yeah. You know, that's why we love this game, and uski jo uncertainty है ना cricket की. You know, these things do happen. जब knockout stage पे पहुंच जाते हैं, pressure different होता है. But अगर overall चारों semi-finalists को देखा जाए तो जो complete team है वो इंडिया ही है. Right. उनको इनके सारे bases covered हैं, spinners ले लें, pacers में maybe थोड़ा सा jinx है. लेकिन उनकी जो बैटिंग है, you know, on this pitch, although they lost 3 early wickets, और फिर एक पार्टनरशिप बिल्ड करना, और फिर नीचे से आके पांड्या और जडेजा सारे चिप इन करना, और 250 रन इस पिच पर, और कोई प्रोबेबली कोई और टीम होती, और जिस तरह की you know बॉलिंग थी इनकी न्यूजीलैंड की, would have been tough. Would not have been that easy to get to 250. Varun was outstanding. 5 wickets for the architect, as you call him. Yes. जी, incredible. और जिस तरीके से बॉलिंग की आज अपॉर्चुनिटी मिली, 5 विकेटें on that surface, incredible. But just getting back to that, Australia, India semi-final as well. जिस तरीके से आप दुबई में खेल रहे हैं, एक चीज़ तो तय हो गई है. अब कोई ड्यू नहीं है तो आप भले ही इंडिया बाद में एक और चीज़ भी तय हुई है निखिल कि पिच ऐसी होगी. भाजी सूखा विकेट है, Dry pitch. So coming to that कि टॉस जीत के इस विकेट पे यानी कि चेस करना मुश्किल हो जाएगा. कब? हाँ. The only thing difference for ऑस्ट्रेलिया जो फाइनल खेला था वर्ल्ड कप में, उसमें से 3 प्लेयर उनके नहीं है. स्पिन फंसेगी क्योंकि इस विकेट पे आपको स्पिन चाहिए. एडम जैम्पा एक ही स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के पास है. मैक्सवेल आके वो थोड़ी सी वो गेंदबाजी करेंगे. बट जिस तरीके से इंडियन टीम ने विकेट को रीड किया, दे वेंट विद अ चांस. हम लोग सब ऑफ एयर भी यही बात कर रहे थे कि एक एडिशनल स्पिनर लेके खेले आप. But talking about the spinner, Varun was outstanding. Look at his wickets today. Nikhil, take us through these wickets. I mean, look at how he was bowling. मजे की बात है, जब नया बॉल डाले देखिए कितना अच्छी तरीके से बॉल ना अंदर की तरह डिप कर रहा था अंदर. जैसे जैसे बॉल पुराना होता चला गया तो उनकी फिर वेरिएशन और नजर आती चली गई. वो बॉल जो एलबी किया था वो चौका खाने के बाद डाला था, फिर वही टप्पे पे अलग अलग प्रकार गेंद, और ये थोड़ा सा तेज डाला था. ये इन्होंने गेंद सुनील नारायण से सीखा था जब केकेआर के लिए उनके साथ खेल रहे थे, और ये 5वीं विकेट थी. आई एम वेरी हैप्पी फॉर द आर्किटेक्ट वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि इसी मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ जब 10 विकेटों से इंडिया हारा था तो बिल इनके ऊपर फटा था कि आप मिस्ट्री बॉलर लेके गए थे इसी मैदान में. उस दिन बहुत ओस थी, गेंद गीला हो रहा था, लेंथ थोड़ा पीछे था तो पीछे से मार खा रहे थे. लेकिन आज उसी मैदान में आके 5 विकेट निकाली. He'll go back a different bowler when he goes back today. So that doesn't do. हमें भी जरा मुश्किल से इसकी समझ आ रही है. न्यूजीलैंड बैट्समैन को तो बिल्कुल समझ नहीं आई ये तीनों बॉलिंग किस तरीके से करता है और क्या करता है. भाई सबसे पहले बचपन से ये ना टेनिस बॉल से खेलता है. टेनिस बॉल से जब आप एक मिस्ट्री बॉलर होता है, स्पिनर होता है ना, तो उंगलियों का प्रेशर का बड़ा फर्क है. ओके. तो टेनिस बॉल तो दब जाता है. ये नहीं दबता. लेकिन आपकी उंगलियां आदी हो जाती है. एक हरी रंग की टेनिस बॉल वो दबता है. उसके बाद जो हम लोग बचपन में क्रिकेट थोड़ा भारी बॉल खेलते हैं, वो लाल वाला होता है थोड़ा भारी, तो उससे धीरे धीरे वो आदत बनाते हैं. फॉर एनी यंगस्टर टू लुक टू बॉल द कैरम बॉल एंड थिंग्स लाइक दैट. जब नया बॉल डाल रहा था तो जिस तरीके से आप कहते हैं ना, एक तेज बॉलर जो अपनी रिस्ट का इस्तेमाल करता है और सीम इनकी ऐसे चलती है, तो ये अंदर ही आ रहा था. ये अंदर आ रहा था. लेकिन जैसे जैसे बॉल पुराना हो रहा था तो ये नीचे वाली उंगलियां और उसमें प्रेशर बन के फिर ये उल्टा डाल रहा था कैरम.
ये बाहर जाएगा जी, ये Right hand को। ये ऐसे जा रहा था। Okay. तो मतलब लेफ्ट हैंडर को टप्पा खाने के बाद अंदर आएगा और राइट हैंडर को टप्पा खाने के बाद वो बाहर की तरफ चलेगा। जो एक इन्होंने मिचेल सेंटनर को डंडी पे मारी थी बॉल, वो जो था वो सुनील नारायण से गेंद सीखा था। Okay. वो क्रॉसिंग आके वो सीधा ऐसे करके वो तेज तो डाला था। गुगली भी तो करते हैं ये। एक वो गुगली डालते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल एक लेग स्पिनर गुगली डालता है ना, हाँ। वो बैक एट द हैंड रहती है। हाँ। गुगली और कैरम बॉल क्योंकि उसमें दबाव और रिस्ट का इस्तेमाल थोड़ा कम रहता है, वो दोनों गेंदें पेस में इनकी थोड़ी कम रहती है, हवा में धीरे चलेगी। Okay. क्योंकि बैक एट द हैंड वो रिस्ट से चलती है। जो इन डिपर है नया बॉल, वो थोड़ा तेज चलता है बिकॉज आप उंगलियां और रिस्ट का प्रेशर अलग तेजी से डाल रहे हैं। Wow. Very All nicely explained. Yeah, thank you so much, Nikhil. But there were other spinners also at work there, Jadu Paji. They were only spinners. They were only It spinners. was all Spin it to spinners. win it. ये It was कुलदीप को their नहीं pitch, है। wasn't it? I think ये पार्टनरशिप जो थी थोड़ी स्लो जरूर थी, लेकिन वहाँ पे जो ब्रेक किया ना, वहाँ से काम हुआ। कुलदीप यादव के numbers may not look as good as everyone else, but he bowled towards the end, so he has a whole different role. But like you said, I think all the spinners, I think Akshar had a role at the start because spin उसकी गेंद बिल्कुल नहीं हुई आज, लेकिन उसके बावजूद उसने हिलने नहीं दिया। फिर रविंद्र आए, रविंद्र की पेस तो इतनी होती है लेकिन उसकी गेंद इतनी घूमी। तो किसी भी स्टेज पे, क्योंकि 7 ओवर शुरू में जो पेसर ने किए ना, उसके बाद सिर्फ एक ही ओवर शामी का देखा इन्होंने पेस का, ऐसे ही। वापस उसकी जरूरत नहीं पड़ी। और उसमें रोहित शर्मा को भी आपको दाद देनी होगी कि जिस तरह से वो अपनी टीम को चलाते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, और उन पे कॉन्फिडेंस है गेंदबाजों को भी। आई थिंक वो एक एज ए यूनिट चल रहे होते हैं, और ये चारों हावी हैं। और अगर ऐसी पिच हो, कोई खाली स्कोर कार्ड देख के आया हो ना, आज लंच टाइम पे देखा हो तो उन्होंने कहा यार उसने हेनरी ने 5 आउट किए, जेमरसन ने इतने रन दिए, सीमर की बड़ी हेल्पफुल विकेट होगी। शाम को देखोगे कहोगे यार ये क्या हुआ, यहाँ स्पिन वहां पास, बट ये विकेट ऐसी थी, बॉल फंस जरूर रहा था। बिल्कुल। उनके सीमर्स ने अच्छी गेंद डाली, लेकिन हमारे स्पिनर्स जो थे उनके लिए मदद डेफिनेटली। 37 आशारिया 3 ओवर किए इनके स्पिनर्स ने, और इन्होंने 9 विकेटें ली हैं और 4.42 की इकोनॉमी रेट से। they were just तो मेरा नहीं fantastic. ख्याल 250,000 टोटल आप चेस कर सकेंगे। ऑलमोस्ट 40 ओवर स्पिनर्स ने किए हैं। उसमें से 125 आप कुछ कह रहे थे निखिल? अजय भैया, मैं ये सिर्फ पूछ रहा था, वर्ड ऑन रोहित कप्तानी जिस तरीके से जिस स्टेज पे अपने स्पिनर्स को यूज कर रहा था, वरुण को लेके आए, 10 पे आर्किटेक्ट को लेके आए नया पहले। बॉल, जी जैसे जैसे बॉल पुराना होता जा रहा था, फिर कुलदीप को लेके आए कि जैसे उनका बॉल थोड़ा पुराना होगा तो वो ज्यादा और इफेक्टिव होंगे। आई थिंक एक ये वजह बिल्कुल सही है, क्योंकि गेंद ऑब्वियसली अगर ग्रिप करेगा कहीं, और जितना पुराना होगा, क्योंकि जो नया गेंद होता है वो स्किड करता है, उतना ग्रिप नहीं करता, तो पुराना होके स्पिन तो बढ़ता है लेकिन स्लो भी होता है। तो कुलदीप का जो वैसे ही स्लो वो फेंकता है, तो इसलिए शायद उसको बाद में यूज करता है। कुलदीप की इफेक्टिवनेस अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे ना, तो जो लेटर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल शुरू में ले आए जो सीमर को खेल रहा हो, क्योंकि टाइम मिलता है, उनकी गेंद में ना जो बाइट है वो उतनी नहीं है जो रविंद्र के पास है या अक्षर के पास है या वरुण के साथ। तो अमूमन देखा है ये रोहित के साथ कि उसका इस्तेमाल जिस तरह से किया है वो भी बहुत फर्क है, क्योंकि टेल को तो समझ ही नहीं आती ना, जब बैट्समैन को नहीं दिख रही कहां से निकल रही है, तो टेल का तो कोई चांस ही नहीं है। वकार always कुलदीप का, I mean, outstandingly exceptional bowler, लेकिन shouldn't the upper order be telling the middle and the lower middle order कि भाई उसका बॉल खत्म जो है वो विकेटों के बीच में आके होता है। अगर वो लेग स्टंप के बाहर या लेग स्टंप पे गिर रहा है तो वो बाहर को जाएगा, और अगर वो उधर गिर रहा है तो आपके अंदर आएगा। आई मीन दैट शुड बी अ बेसिक एप्लीकेशन फॉर एवरीबॉडी टू काइंड ऑफ मेक एन अप्रोच कि यार अच्छा ठीक है इधर पिच हो रहा है, अंदर ही आना है। नहीं जरूरी नहीं, कई दफा तो बाहर भी निकल जाता है। दैट्स ट्रू। या जैसे निखिल विकी कह रहा था कि ऐसे स्पिनर को आपने हाथ से ही पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो फिर आप गैस ही करते रहोगे। अगर आप इसको रीड नहीं कर सक रहे ना, रिस्ट स्पिनर किसी को भी, राइट आर्म भी रिस्ट स्पिनर हो, उसको अगर आप हाथ से नहीं रीड करेंगे ना, फिर आपको प्रॉब्लम है। और स्पेशली जब पिच में थोड़ी हेल्प हो, अगर हेल्प नहीं है ना तो फिर भी आप मैनेज कर सकते हो। बट इफ देयर इज अ हेल्प, जो कि आज थी, आई वाज लिटिल बिट वरीड फॉर कुलदीप, क्योंकि इतना प्रेशर स्पिनर्स ने ऊपर से डाल दिया था। तो कई दफा आप जब चौथे नंबर पे आते हो और उनकी सिर्फ 1-2 विकेटें गिरी हो, तो आप पे अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि यार ये तो सारा मुद्दा मेरे पे आ रहा है, Attack मुझ पे तो आएगा। मुझे अब उनसे बेहतर करूंगा तो तभी बात बनेगी। उसने आई थॉट ही हैंडल द प्रेशर रियली वेल। ऑफ कोर्स अब वरुण का ये था कि वरुण वापस आ रहा था, मिस्ट्री बॉलर है, उसकी लेंथ हटती नहीं है, वो एक जगह से हटता ही नहीं है। आई सॉ हार्डली सीन अ बैड बॉल फ्रॉम हिम। और दूसरी तरफ फिर अक्षर इज जस्ट आउटस्टैंडिंग, ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, स्पेशली वो जो
साइड से बॉल करता है और फिर बॉल अगर स्पिन हो रहा हो तो आई डोंट थिंक ही गिव्स मच अवे। वो इतना प्रेशर वो डॉट बॉल्स का डाल दिया था ना अर्ली ऑन ही कि वो उससे निकला ही नहीं जा रहा था। मैं मिचेल जो खेल रहा था वो उसको ये था कि नॉर्मली वो बड़ा अग्रेसिव खेलता है, पेसर स्पिनर्स को निकल के खेलता है, सामने छक्के मारने का शौकीन है, लेकिन आज कोई नहीं। आज तो उसको ये था कि मैं जो ही निकलूंगा मेरा काम हो जाएगा। बाहर निकलो। और उसने 1 इंच, किसी बॉलर ने भी 1 इंच होता है ना, हार्डली बोला बैट बॉल। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे न्यूजीलैंड ने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, स्पेशली ब्रेसवेल ने। ब्रेसवेल ने शॉट भी किया, वाइड भी की, हालांकि 3 जब आउट कर लिए थे तो वो प्रेशर जो सेकेंड इनिंग में हमने देखा ना, अगर वो पहली इनिंग में डाला होता, ये इन्होंने सेंटनर ने और उसने डाला होता, दे थॉट के 250 आज चेसेबल है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन उनको नहीं आइडिया था कि स्पिनर्स इतना अच्छा बॉलिंग करें। One guy that was giving a lot of resistance was Williamson, the man himself. That innings by him, just fantastic. Wasim. Yeah, he is one of the top players in world cricket. 81 किया उन्होंने, पूरा पारी ली, पूरा उन्हें पता था, एक्सपीरियंस था, टर्न हो रहा है, स्पिनर को अच्छा खेले। मगर दूसरे एंड पे आई थिंक जब वो आया ना इनका वो अदर बैट्समैन नंबर 4 पे आया मिचेल, जब उसने किया ना रोकना शुरू तो वो फिर प्रेशर बिल्ड होता रहा बाकियों पे भी। बिल्कुल उसने आई थिंक 35 गेंदों पे 17 रन किए हैं बजाय कि रन बॉल जाओ। मगर कमिंग बैक टू बोथ द लेफ्ट आर्मर्स, दे वर लिटरली अनप्लेबल टुडे, जडेजा एंड अक्सर, सो इट वाज बिट डिफिकल्ट फॉर देम टू चेज। ये ऐसी पिच है कि आपको शॉट्स खेलने ही पड़ेंगे। अगर आप शॉट्स नहीं खेलेंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे, आप रन नहीं हो सकते। रन रिस्क लेने से होंगे। फ्लैट पिचेस पे आपको कई दफ़ा रिस्क नहीं भी लेना तो फिर भी स्कोर चलता रहता है। लेकिन ऐसी पिच पे अगर आप ठक्का लगा देंगे ना तो वो प्रेशर बनता ही चला जाता है। तो आई थॉट के लेना चाहिए था अर्ली ऑन, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनको रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए था। पेसर्स पे भी थोड़ा सा लेना चाहिए। तो यंगस्टर ने लिया ज़रूर रविंद्रा ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेंट स्ट्रेट टू द हैंड्स, क्योंकि स्कोर अर्ली ऑन ही आ सकता था, लेटर ऑन तो कोई चांस नहीं था। All right, with that, we're going to take a break here on the DP World Dressing Room. When we come back, there's more about the game. It is India that have walked away with another victory at the Dubai Ring of Fire. We'll see you on the other side. Welcome back to the DP World Dressing Room. I am Fakhri Anam and you're watching 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. And another victory for India here in Dubai. New Zealand now thinking as they get ready for their semi-final. That's going to be in Lahore now and against South Africa. It's going to be good fun. But let's talk about that Indian innings batting up front. Jaddu Paji, look at this. Now first, this is the story, the innings story of India and New Zealand. Where do you see New Zealand lost the plot there? I think they lost the plot, I think, in that 11 to 15th over stage, because when you look at India, they were more in trouble. In spite of that partnership with Shreyas Iyer and Akshar took them to that stage where they could. But then India struggled at 26 to 40, where I think New Zealand obviously struggled the most there. And the key was that partnership from 11 to 25th. For India, that took them into a stronger position, a base where they could have taken off from. Whereas in New Zealand, in spite of only losing 2 wickets till that stage, they somehow played in a way that they believed that they would try and get runs right at the end or kept too many wickets in hand. And they tried to play the game according to how they wanted. They just didn't play the game depending on what the game was allowing them. If I may, sorry. If I may, जिस तरीके से पहली इनिंग में भी बॉल चला था, जैसे जैसे पुराना हो रहा था, स्लो हो रहा था. Do you think New Zealand missed a trick? नया बॉल, कड़ा बॉल. If I had to take a chance कि यार थोड़ा नया बॉल की तरफ जाते हैं ताकि बॉल पुराना होगा तो बीच में 2-4 ओवर स्पिन के आराम से आप खेल भी सकते हो. You had to be ahead of the game. Yeah, you're absolutely right. And but I'm just looking from New Zealand's point of view, because जब उनका कप्तान टॉस पे आया, उसने क्या कहा था? We want to bowl first because at the evening the ball comes on better. So if you believe that, and that's how you've gone into bat, then you want to keep everything towards the end, because the last few overs you're hoping that it'll be cooler, the ball will come better, and you'll be able to score more runs. So उनके माइंड में ये था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पहली वाले 10-15 ओवर थे ना, वो उन्होंने, एक तो होता है बॉलिंग हो रही है, बॉलिंग अच्छी हुई है, इसमें डाउट नहीं, बट एक आपका स्ट्रेटजी ऐसी थी कि आप विकेट नहीं लूज करना चाहते. यू वांट टू कीप विकेट्स एट द एंड, सो यू कुड मेक यूज ऑफ दैट. रोहित शर्मा ने थोड़ी सीम लगानी थी, सीम लगा गया. जैसे जड्डू ने कहा, अक्षर और आयर की पार्टनरशिप 67 की बड़ी इंपॉर्टेंट. उन्होंने आके रोकना शुरू किया, सिंगल्स किए,
फिर 1-2 चौका मिला और सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग जो एंड में मेरे ख्याल में थी, जिसने अपनी पूरी गेम चेंज की। पांड्या किस लिए मशहूर है हार्दिक? वो इसलिए मशहूर है कि आके मारता है। यू नो, उसका स्ट्राइक रेट T20 में 160 ले लो, 150, यहाँ पे उसने 45 किया सिर्फ 45 गेंदों पे। According to the pitch, according to the situation, he changed his game. That's what good players do. Yeah, on your screens, Hardik Pandya there, that was just absolutely fantastic. And that's what, as Wasim said, this is what he does. Now, today it was a 100 strike rate, I mean 45 balls, 45 runs. But it was a very well calibrated innings, Waqar. अब ये पहले शुरू में देखे ना तो पहले 14 गेंदों में सिर्फ चार ही रन बनाए थे, तो he allowed himself to take a little bit of more time, क्योंकि टाइम उसके पास था। और फिर उसके बाद आखिरी जो 3-4 ओवर थे, that was the time to lutify, and he did it beautifully. I mean, एक टाइम पे वो 270 भी लग रहा था, लेकिन 250 कर दिया, फिर भी it was a good total. I love the word lutify. बिल्कुल लूटोफाई उस टाइम क्रिकेट की ये cricket अच्छे लफ्ज हैं, उसने lutify. बल्कि सिर्फ आंकड़े अगेन जो आई एम एंटी आंकड़ा, उसने कितने सिंगल्स और डबल मिस किए आखिरी के 4 ओवरों में, क्योंकि स्ट्राइक रख रहा था। स्ट्राइक रख रहा था अपने। नॉर्मली ये स्ट्राइक रेट वहीं होती है जहां इसकी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। But Wasim also pointed out Iyer's innings was also very very special. इनक्रेडिबल। आई थिंक ये जब से टीम इंडिया वापसी आई, एनी सिंह, इन्होंने बोला भी था कि वेयरिंग द इंडिया कलर्स, यू नो, वेरी प्राउडली वेयर्स इट। ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, ही सॉ, जब 3 विकेटें गिरी थी, बैटिंग करने आया, ही सॉ दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। ये चौके तब मारे थे जब वो सेटल हो गए थे, इंतजार कर रहे थे बॉलिंग चेंज का कि मेरे मतलब का बॉलर आएगा तब मैं चांस लूँगा। एंड बड़ी अच्छी तरीके से ही न्यू एग्जैक्टली कौन से बॉलर का किस जगह पे वो हाथ खोलने के वो बाउंड्रीज मारेंगे। ही न्यू द पॉकेट्स, एंड आई थिंक दैट्स द हॉलमार्क ऑफ श्रेयस अय्यर कि नीचे आके एंड में उसको पता था कि मैं कौन से बॉलर के पीछे भाग जाऊंगा। सो ही वाज क्रिस्टल क्लियर इन हिज माइंड हाउ ही गोइंग टू बिल्ड हिज इनिंग्स, एंड ही इज इन गुड निक। पिछले 6 मैचों में इनके हैं 331 रन, 55 की एवरेज से, 100 का स्ट्राइक रेट वनडे में एक्सीलेंट है, और साथ में 4 50 भी किए हैं। और इस विकेट पे 50 करना, जब 2 विकेटें गिरी हो, फिर अक्षर को साथ खिलाना, उसको भी उसने कहा बस तू रोकी जा, सिंगल मिले वहाँ सिंगल लिए, जब पार्टनरशिप हम ओवर थोड़े गुजारते हैं ताकि एंड में आके पांड्या या जो भी है वो आके थोड़ा बहुत स्कोर चके, हम रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच सके। वहाँ अगर विकेट गिर जाती है एक आधी तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट सिनेरियो, बट वेल डन टू देम, दे असेस्ड एंड दे रेड द सिचुएशन वेरी वेल। Yeah, Waqar, you wanted to add? दोपहर को हमने इसका इंटरव्यू सुना था, हाँ। ब्यूटीफुल इंटरव्यू, हमने और यही बात की थी कि ही इज अ कैरेक्टर, और आज उसने कैरेक्टर शो किया है। सिर्फ बैटिंग में तो उसने किया ही किया, उसने वो भी दिखाया कि आई डू बट व्हेन आई फील लाइक डूइंग समथिंग आई डिड इट। और वो किस तरह प्रूव किया उसने कि जब वो आउट हुआ ना, आई थॉट उसको आउट नहीं होना चाहिए था। Right. उसको टू बी ऑनेस्ट वहाँ आउट नहीं होना चाहिए था, वहाँ आराम से 100 भी कर सकता था, 125 150 भी कर सकता था, लेकिन बिकॉज ही दैट्स द वे ही इज अ कैरेक्टर इन द गेम। तो जब उसको बाउंसर होने शुरू हुए ना, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं, उसने पहला मारा छक्का, दूसरा मारा बीच में गिरा, एंड दे केप्ट ऑन बॉलिंग दोस बाउंसर्स, एंड ही जो कहते हैं ना जो एरोगेंसी और वो जगह ओके मैं देखता हूँ तुझे, ही केप्ट ऑन प्लेइंग दोस शॉट्स। At the end, अपने shell में नहीं गया। नहीं, at the end he lost his wicket. That's him. Yeah. That clearly shows that's the way he wants to be himself. Plays अगर वही वो छक्का हो जाता तो हम कहते यार wow. But that's the way he take chances. That's why we are talking about him. Matt Henry really bowled very well today, Wasim. He was, he bowled beautifully with the new ball. You know, ball was seaming around. It looked a flat wicket, but early on देखें 28 डॉट बॉल, 5 आउट किए, 42 रन देकर, और टॉप के आउट किए, ये नहीं कि नीचे से किए। मेन मैन सीधा गेंद मिस हो गया गिल से, और उसके बाद यार ये क्या करना है इसका यार फिलिप्स का। भाईजान वो तो अनु फिलिप्स ही मुसीबत पे ही है, कभी सज्जे हाथ नाल कभी खब्बे हाथ ये नाल इधर डालो। इसको तो देखें, ये विलियमसन ने खब्बे से पकड़ लिया। इनक्रेडिबल फील्डिंग से आपकी टीम का ऐसा मोराल बढ़ता है ना, और वही फील्डिंग आपकी मिस फील्ड हो जाए, कैच ड्रॉप हो जाए, जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में की, 1-2 मैचेस ड्रॉप, उसके बाद गेम इज ऑल ओवर। बट कमिंग बैक टू हेनरी, आई मीन 5 विकेट लेना ऐसी पिच पे इज अ बिग डील, सो वेल डन टू हिम, बट ऑब्वियसली काम नहीं आया, टीम इनकी हार गई। अगेन इट्स अ राउंड गेम, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आप आगे जाते हो। सेमीफाइनल जो अब लाहौर में है न्यूजीलैंड का विद साउथ अफ्रीका, देयर बी अ ब्लॉकबस्टर। Yep, all their fielders are flying. All. फिलिप्स का करना है भाई, ग्लेन फिलिप्स एक पास उसका से कैच उड़ रहा है, पकड़ा, दूसरे पास से विलियमसन और उस पास से उड़ रहे हैं। लेफ्ट हैंड से आज पकड़ा है, राइट हैंड से नहीं। एक तो था ना आपका एक हाथ होता है,
कि अगर मैं लेफ्ट हूँ तो हाथ मेरा दोनों ये ही हाथ होते हैं I mean, एक हाथ स्ट्रांग होता है जैसे मैं लेफ्ट जब देखो उंगल के लिए ये विराट कोहली वाला कैच देखें आप जरा मुलाहिजा करें बंदा काटते छलावा गाड़ा लगता Look at है this man. दिस इज नॉट फेयर मैन लुक ये एट this should be banned by the ICC. और ये जोर की लगा या जुज नहीं लगी उसको नहीं, पूरा पूरी बल्ले shot पे मारी लगा थी। ball। ये देख I think कोहली thought ये चौका है. Yeah. Look at that. But Look he at said, oh my Philip goodness. said, don't you worry, I'm there. And look ये at this. चौका ही होना चाहिए था यार जाती है Unbelievable. जाती की बात है. This guy is just a treat to watch in fielding. And you can change a game. हमारे साथ एक बड़ा जबरदस्त फील्डर रहता है इधर ये reaction देखिए time तो reaction time. चलेंगे. मगर टाइम बहुत कम था अगर आप गौर करेंगे ना कैच उसने ऑलमोस्ट बॉल उसके पास निकल चुका है Yeah. एक होता है टाइम में आपने आगे पकड़ा है ये पीछे पकड़ा है देखें उसकी बॉडी जो है आगे जा रही है लेकिन जब बॉल उसके हाथ में आई है वो ऑलमोस्ट 1.5 फीट का मतलब जो फर्क भाई तो यही change- उसने रिजवान के साथ किया था पीछे से पकड़ा था कैच ठीक है ना वो रिजवान Left की hand पीछे वाला Left hand. वो लेफ्ट हैंड था ये राइट हैंड था नहीं कीपर यार, बड़े वो देखे तो- हैं मैंने वो- फील्डर ऐसे नहीं देखे ऐसे मैंने नहीं यार नहीं तो पायन वो जेड़ा विलियमसन ने पढ़े कम है उसने लेफ्ट हाथ से पकड़ लिया है। Yeah, वो थोड़ा it's just- स्लो गया था वो ठीक थोड़ा है। स्कूप था उसके बाद टाइम था इसके बाद टाइम ही नहीं था पढ़ के दिखाना आओ जरा बॉल देना आप मैं- जरा पकड़ के दे वो जरा स्लो था वो देख, वो गले से- आसान था। मैं- ए, चेक करो जरा मैं तो खब्बे हाथ फाड़ ही नहीं सकता उन्हें खब्बे नाल कीता ना किसी ने आज कमेंट पे लिखा है कि बकार की 3 उंगलियां 3 नहीं यार 4 उंगलियां चार उंगलियां। और नाल ते तक लो नहीं तीन ही नहीं उंगलियां तीन तीन नहीं। उंगलियां तीन है एक अंगूठा है अरे ये अब पता चला लोगों को 9 लाख क्यों है थैंक यू विकी बाय द वे दिस इज व्हाई आई कॉल हिम द नो लखा क्योंकि आप 10 का साइन करें इसमें 9 लखा वाला कौन सा 9 चक्कर है? उंगलियां आ गई ना यार तो 9 लखा कैसे होगा ये बताओ 9 लाख एक टर्म है किसी चीज को इससे बड़ी कोई चीज नहीं है मैं तुझे 9 लखा दिलवा किसी दूंगा किसी को 9 लाख हार होता है। इंडिया वही हार तो होता कह है रहे ना हैं जब यार। किसी की वो तो करने आपकी की 9 उंगलियां हैं और आप हमारे आओ लिए मैं यू आर बताऊं लाइक अ जूल फॉर अस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਾਂ 9 ਲੱਖ वो गाना नहीं सुना it मुझे is a 9 लाख it is a praise it is not a नो आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दैट एक तो- लेकिन ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ स्प्रेस ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ यार ना फिर मैं अगली बार मैं कहूंगा 1996 का 9 लखा ठीक है हुन है होएगा मगर भाई डू वी हैव टाइम यार अपना शो है जो मर्जी करें वो जो शुभमन गिल वाला जो विकेट था ना विकी भाई सिटिंग वाचिंग द गेम ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट द बॉलर वाज गोइंग टू डू जिस तरीके से बॉल बाहर स्विंग कर रहा था एंड ही सेड कि वो डालेगा ऐसे लेकिन जाएगी सीधी इफ विकी भाई कैन जस्ट एक्सप्लेन व्हाट ही मेंट बिकॉज़ दैट टू मी इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर एनीबॉडी who wants to learn the art of swing we bowling. will show you the actually Break can we ले- इसको break ब्रेक ज़्यादा के बाद important दिखाते हैं है। क्योंकि आई वांट प्रोडक्शन इसको जरा सेटअप भी दिखाइएगा क्योंकि पहले उसने सेटअप किया है पहले उसको उसने तैयार किया है शुभमन गिल को कि ये और फिर ये तो अभी लेते हैं ब्रेक और फिर ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसे हुआ था डोंट गो अवे स्टे विद अस Hello and welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Anam. You're watching 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. With me in the DP World Dressing Room, I've got 4 fantastic gentlemen. I've got Nikhil Chopra, Waqar Yunus, very busy with Wasim Akram on his social media. Chhad dena yaar. And of course, Ajay Jadeja. And we were talking about the game, India versus New Zealand. Congratulations to India. Unstoppable at the moment. But before we went on to the break, हम बात कर रहे थे जो ball setup की थी to Gill. And Waqar, you wanted to, because Nikhil pointed out, Yeah. जब मैच हो रहा था, you were constantly saying he's setting him up. This is what's coming next, and that's exactly what came. देखिए बॉलिंग में जैसे क्रिकेट में बैटिंग में बैटर्स आपको बता सकते हैं इसी तरह बॉलिंग में भी आपको एक सेंस आ रही होती है आपको एक फीलिंग आ रही होती है कि ये होने जा रहा है तो इसी तरह की कुछ मेरी फीलिंग थी दैट्स व्हाई आई जस्ट सेड कि ये सेटअप कर रहा है और ये ऐसे होगा लेट मी टेक यू बैक अभी हम जो बात कर रहे थे ना निखिल ड्रेसिंग रूम में कि जो आई लर्न रिवर्स स्विंग बिफोर आई लर्न अ न्यू बॉल बिकॉज मैंने टेप बॉल से शुरू किया था बॉल उस पर टेप लगाते थे एक साइड पे ज़्यादा लगा लेते थे एंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल लेवल जब मैं नया नया स्कूल से निकला था हम लोग टेप बॉल खेलते थे एंड आई यूज टू जस्ट बॉल लाइक विद स्लिंगी एक्शन वो बॉल ऐसे आता दैट्स वेयर आई लर्न माई रिवर्स स्विंग ठीक है तो जब मैं व्हेन आई फर्स्ट केम टू पाकिस्तान साइड reverse was already there. Wasim Bhai was doing it, and then Imran Bhai was there, and they were all good bowlers were there doing it. So it made my life very easy. कि यार ये ऐसे मैंने आंदा है. I knew it from the beginning, so it was easy. That's why most of my early wickets are with the reverse swing. वो तो back टूटने के बाद जब मेरी pace थोड़ी नीचे आई तो then I realized कि I need to learn something new. और सारा नवे बॉल है कर जाते पुराना बॉल दे देते हैं पेस नहीं है तो मैं मारा जाऊंगा. So that's where I've learned the new ball. और new ball में भी I was very similar to what he was doing. Making a shape on the ball.
और शेप क्या होती है बॉल की, यू नो, वॉचिंग वसीम भाई एंड वॉचिंग अदर बॉलर्स, बेसिकली क्या है कि यू नो दिस पार्ट ऑफ योर हैंड व्हेन यू डिलीवर द बॉल, कोशिश ये होती है कि ये आपका जो हाथ का ना, चाहे आप यहाँ से आ रहे हैं, चाहे आप ऊपर से आ रहे हैं, चाहे आप जहाँ से भी आपका बॉल आप गिराते हैं, आपका ये पोर्शन जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये बिल्कुल जो बैट्समैन है उसको फेस होना चाहिए, एंड देन योर फिंगर्स डू द जॉब टू मेक द बॉल गो दिस वे और दैट वे। सीम सीधी होती थी, थोड़ा स्लांट करता था। नहीं थोड़ी किसी नहीं, मैं पकड़ता मैं सीधा ही था, बट मैं रिस्क की वजह से मेरी थोड़ा सा स्लिंग होता था, तो मेरा बॉल ऐसे निकलता ही ऐसे था मेरे हाथ, ठीक है ना। सो मैं कोशिश मेरी ये होती थी कि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये सीधा निकले बॉल का। इट्स अ वेरी गुड लेसन फॉर यंगर बॉलर्स हु आर लर्निंग, कि इसको करोगे आप, फेंकोगे भी बॉल ना ऐसे, आपको खुद फील होगा कि ये बॉल शेप बन रहा है, ऐसे फेंकोगे तो वो इधर शेप बन जाएगा। सो बेसिकली शेपिंग के लिए ये आपका पोर्शन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर मैंने जब ये आउट स्विंग तो मैंने सीख लिया, अब मेरा इन स्विंग हो नहीं सकता था, बिकॉज आज मेरा बाजू नीचे गिर गया था, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी, वो ऐसे करता टांग पे चला बॉल से। सो देन व्हाट आई लर्नड ओवर द इयर्स, उसके बाद कि यार ये मैं इसको, चलो मैं इन स्विंग नहीं कर सकता, तो मैं कम से कम इसको ऐसा कुछ बॉल निकालूं कि जो बॉल स्विंग ना हो सीधा, क्योंकि अगर आउट स्विंग हो रहा है तो कोई ऐसा बॉल हो कि जो स्विंग ना हो, बस इतना हो, दैट्स ऑल आई वांटेड। क्योंकि सेटअप क्या करते हो आप, बैटर को सेटअप करते हो ये कर करके ना, तो उसको वो छोड़ता है या खेलता है या बीट होता है या जो भी हो रहा है, लेकिन उसका एक फर्मा फिट हो जाता है बैटर का ना, कि यार ये बाहर जा रहा है, आप ऑफ स्टंप से करते हो। और इसने आज क्या किया, जो खूबसूरत चीज़ ने की कि इसने एग्जैक्टली वही किया विच आई यूज्ड टू व्हाट आई डू, कि मैं अगर ऐसे पकड़ रहा हूँ ना, तो मैं इसको सिर्फ ऐसे कर लेता था। आई यूज्ड टू पुट दिस फिंगर ऑन टॉप ऑफ द सीम, और मैं एग्जैक्टली जैसे आउट स्विंग करता हूँ एग्जैक्टली वही बॉल करता था, लेकिन क्या करता था, मेक श्योर करता था कि वो जो पट्टी होती है ना, उसके ऊपर गिरे, ठीक है, कि वहां से आउट स्विंग ही हो रहा है ना, तो बैटर तो फिक्स है कि इसने आउट स्विंग खेलना है, तो मैं उसी एक्शन से उसी तरह मैं बैक स्पिन देता था, हर चीज एग्जैक्टली वही करता था, कोई तब्दीली नहीं लाता था। ठीक है, होता सिर्फ ये था कि जो बॉल इस शेप में निकलता था ना, तो निकलता ऐसे ही था, ऐसे हवा में ऐसे निकलता, पड़ने के बाद वो स्विंग नहीं होता था, सीधा रह जाता था, वो सीधा रह जाता था। सो यू डॉज्ड हिम बिकॉज़ आप उसकी अगर दोबारा रिप्ले दिखाएं ना, ये रिप्ले दिखाते हैं हम आपको ऑन योर स्क्रीन, तो आप गौर से देखिएगा कि शुभमन गिल ने उसने पहले कैंची डाल ली है, देखें वो कैंची क्यों डाली है, क्योंकि उसने जो उससे पहले 3-4 गेंद थे वो आउट स्विंग किए हुए थे। वॉच दिस, सी वॉबली होगी थोड़ी सी, एंड पढ़ने के बाद सीधा रहा है, इट्स नॉट एन इन स्विंग, ऐसा हो लग रहा होगा कि थोड़ा सा इन स्विंग हुआ है एंगल की वजह से, लेकिन ऑल व्हाट हैपेंड, बॉल पढ़ने के बाद सिर्फ सीधा हुआ है, उसको स्विंग नहीं मिली है। तो गिल साहब पूरी कैंची डाल चुके थे, गुड बाय, दैट्स व्हाट हैपेंस। गिल साहब कैंची डाल चुके थे, दैट्स वेरी नाइस। सो दो बॉलें जो हम आपको दिखा नहीं सके इससे पहले, जो जब हम मैच लाइव देख रहे थे, तो वकार पॉइंटेड आउट दैट हेनरी एक्चुअली सेट हिम अप, एक वो जो इसी जो लिफ्ट क्रॉस करके वो दिखा रहा था, फीड किए बॉलें, ब्यूटीफुल एक्शन फॉर एन आउट स्विंगर, ऐसे ऐसे बनते ऑल ही डिड सेम थिंग, बट ही मेड श्योर कि जो सीम सीधी निकल रही है वो हल्की सी वॉबल हो जाए, मेरी बिल्कुल ही थोड़ी वॉबल हो जाती थी, लेकिन उसकी थोड़ी सी वॉबल हुई है, पढ़ने के बाद सीधा। All right, outstanding. Valuable information for a lot of youngsters all around the world that are watching this right now. And next up, we have the fall of wickets brought to you by the Tamasha app. आज बहुत अच्छी तरीके से सेटअप किया था, शुभमन गिल स्टंप्स के बिल्कुल सामने पाए गए, उसके बाद रोहित शर्मा ने यहीं पे एक चौका लगाया था, लेकिन फिर बैट के निचले भाग में लगी, आउट हुए। एंड आउटस्टैंडिंग कैच, अद्भुत, ग्लेन फिलिस के नाम पे जानी चाहिए ये विकेट, और एक साझेदारी के बाद एक सॉफ्ट मिसल अक्षर पटेल, और फिर अर्धशतक के बाद श्रेयस अय्यर जस्ट लुकिंग टू अप द एंटी, अपना विकेट खोया, और फिर इस तरीके से केएल राहुल कॉट बिहाइंड। ये एक और कमाल का कैच केन विलियमसन का, और ये इनिंग्स के अंत में बड़ी बड़ी हिट लगाने की कोशिश में हार्दिक पांड्या आउट हुए। फिर इस तरीके से मोहम्मद शमी, मैट हेनरी की 5वीं विकेट, मोहतमान पहली विकेट रचिन रविंद्र को फंसाया हार्दिक पांड्या ने, अच्छा कैच अक्षर पटेल द्वारा। लेकिन यहीं पे चांस था अर्ली ऑन, अगर रन्स निकलते, लेकिन जो ही स्पिनर आए फिर उसके बाद कोई चांस नहीं रहा। आई मीन चारों स्पिनर्स को अगर उठा के देख लेंगे तो उन्होंने जगह ही नहीं दी, उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल किए, हल्का सा स्पिन हो रहा था,
एंड न्यूजीलैंड हैड नो क्लू. न्यूजीलैंड के कुछ बैट्समैन को तो पता भी नहीं था कि गेंद किस तरफ स्पिन होना है. और जब नहीं है, मिसिंग ऑफ था. आई नो, जब मत बजती है ना फिर ऐसे ही यही होता होता है. है. तो एंड पे फिर देन इट वाज टू लेट. आई मीन आखिरी वालों को तो उन्होंने बस it was सेल पे लगी हुई थी विकेटें, आके बस जिसका दिल है आके ले लो. तमाशा. They were toying around. प्रॉपर तमाशा था ये आखिरी विकेट. $19 wickets today. Outstanding stuff there. But congratulations to India. Also congratulations to New Zealand because they both move into the semi-finals. But now we know who's playing what. एक दफा फिर आपको refresh करा देते हैं. 2 semi-finals. पहला semi-final 4 तारीख को, 4th को दुबई से live. This is going to be India versus Australia. And this will be live on the 4th of March, Tuesday. And then on Wednesday, 5th of March, you're going to see from Lahore, Gaddafi Stadium, South Africa versus New Zealand. Who is going to be wearing that coveted white jacket at the end of this Champions Trophy? We'll find out the champion on the 9th of March. But with that, it's time for another break here at the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Anam. You're watching 10 Sports. We'll be back right after these messages. I have always believed people and communities around the world. That's why I'm proud to be partnering with DP World in this new initiative We played to every make day. cricket possible. We wanted to develop a truly unique and special cricket experience with everything needed to play cricket, including the bat, balls, and the scoreboard. And because it's made from a shipping container, we can use smart logistics to deliver it to communities that will benefit from it. Now I can bat like Sachin. It's just the first of 50 containers that we are creating. It's all part of our mission to make cricket possible. It's very thrilling and just the beginning of an exciting journey. And welcome back to the DP World Dressing Room. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं 10 Sports. Our continued coverage of the ICC Champions Trophy. You just saw our DP World container, which is going to be unveiled tomorrow in Karachi as well. We'll tell you all about it. But right now, it is time to take a look at the Beyond Boundaries initiative of DP World now. Remember that every time 100 is scored in a game, in a match, 10 kits are given away. Today, 400 collective runs that we saw, which means 40 kits are going to be distributed. Now, याद रहे कि ये हमारी partnership है ICC के साथ. We give these kits to grassroots level players around the world. Wherever ICC tells us there is an opportunity, we go there and we deliver these kits. And all these kits are dispatched by none other but the DP World team. And with that, it's time to take a look at the DP World dispatches of the day. Time for the DP World Smart Performance of the Day. And it's time for the DP World Smart Stat of the Day. Nikhil, take us through this smart stat on your screen now. Okay, in ODI, T20s and domestic cricket combined, Varun Chakravarti के 33 विकेटें हैं पिछले 10 वाइड बॉल मैचेस में और उसका कारण यही है कि उनके हाथ से गेंद जब निकलता बतौर बैट्समैन नहीं पढ़ पाएंगे तो गुरुजी आर्किटेक्ट साहब आपको हर बारी चकमा जरूर देंगे. Right on. And with that, it's time for the fastest delivery of the day, brought to you by Food Panda.
There's 143.9 kilometers in that one, but Vakar, I think it went to Williamson at 250 kilometers an hour because he was dancing on that one. I think आज ही नहीं पिछले भी 1-2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है जो ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਿੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ so I mean आज वैसे मजा आया इसकी बॉलिंग देखने का you know he had plans you know bowled really with good control और bounce भी मिल रहा था and tall man and I really enjoyed his bowling. Yeah, it was all round a great performance there. But with that, it's time for another break. But before we go into the break, when we come back, it is your and our favorite segment, which is hashtag Ask the Room. ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है hashtag Ask the Room. You can ask us questions or comments via X, Facebook and Instagram and also YouTube now. So we're going to be taking your questions. Our experts will be answering those questions and at the end we'll decide that the best one is going to win a signed ball. ये ball जो हमने रखा हुआ है यहाँ पे will be signed by all 4 experts here and will be dispatched to you by DP World. So get ready and we will see you right after this break. Welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Anam. You're watching 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. Break में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे. We're going to get ready now for hashtag Ask the Room. But उससे पहले जरा लीडर बोर्ड के ऊपर नजर डाल लेते हैं. But our expert predictions on the leader board तो हम भूल ही गए थे. Let's take a look at how the leader board is being updated right now. But I think who's in the lead because I think somebody here today actually messed up, didn't they? Ajay Jadeja. Not at all. Yes. As a team, we are moving forward. You are. वह तोहफा ऐसा देना कि आधा आधा What are you doing? You're on TV, man. आधा ना हो सका हम 4 हिस्से करने के चक्कर में Achha, you were trying to hide yourself. I'm just hiding. Have you updated it yet? It's not been updated. Vicky and I have made sure the software has gone wrong. नहीं बट वो सब में शेयर हो रहा है भाई मैं उस कंप्यूटर की तार खींच आया हूँ. तुसी खिंचाओ, चलो. We'll come back to that a little later, but let's start off with hashtag Ask the Room. First question, Waji Abbas. Waji Abbas, आपका X handle है Wajab SKAN, Wajab Scan, और आपने सवाल किया है to Wasim Akram. Bhai, please on the actor mode to answer this, all right? If you were to play a role as a villain in a movie, which one Bollywood movie would you pick and what role would you नहीं do? विलन तो फिर वो एक ही बनता है ना जो जिस पे हमें वो झिड़कियां पड़ी थी वो याद साहब से शोले फिल्म का अमजद खान साहब गब्बर सिंह मगर अगर हीरो है तो वो हमारे लिए तो अमिताभ बच्चन ही है सर. सर तो क्या करना है आप उनका एक्टर मोड में उसी तरह बताएं डायलॉग करेंगे आपके डायलॉग आपने रोल कैसे करेंगे आप Wait, close up. करोगे आगे तो चुप कर एडना एक्शन. बाप का नाम दीनानाथ चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीने. बस कर दो. well done. पैन एज की थी ना 36. उन्होंने कहा नहीं ये तो बिल्कुल कर लेगा. 9 महीने भी लाए ना. गाँव का नाम Too good. मांडवा. You want me to mess it up? No, I just. That's why you asked me again कि I will mess it up. मैंने लिखा है इंग्लिश में लिखा है मांडवा. वो कह रहे थे आपको बुरे वाला बोलना चाहिए था. He wanted you to put बुरे वाला there. All right, so जनाब. good he is. Very good. Yes, he's a natural. Very He's a natural. natural. Very natural. पायन बहुत बड़ी फिल्म नहीं है आपको अंदाजा ही नहीं है. All right. ਤੁਸੀਂ चलो आप ਸਾਨੂੰ शुरू ਦੱਸ ਰਹੇ करो. ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੇਂਦ ਤੇ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਸੀ. All right, next up, Golden Pup 711. Golden Pup 711. Hashtag Ask the Room. Fakhar bhai, the wonderful, soft-spoken, humorous host. Question to Jaddu Baji. As an opener, what? एक मिनट. क्वेश्चन जड्डू भाजी पहले तारीफ अपनी. मैं अगले ने सोचा किए, शायद- मैं अच्छा, कुछ नहीं अगले कर ने किए. सकता. मैं सोचा शायद ऐसे ही रुक जाना. अगले ने किए, मैं क्या कर सकता हूँ? I can't. It's what they've written, right? Okay, of course. But now I have to read the whole thing again. Fakhar bhai, the wonderful, soft-spoken, humorous My host. God. Question to Jaddu Baji. Anji. As an opener, what's your mindset when Vakar was explaining how batsman is set playing out swing and trap you with one unexpected straight? Aren't modern day players keenly watching the finger position of the bowler? Good question, by the way. They are. Very good. They Yeah. are. They're trying to watch. I mean, as a batsman, that's what you are actually looking at. It's almost like how, if you're looking at the screen now, what are you looking at? If I'm moving my hand and if the ball's going to come out of this, you're not looking at my face. You should be looking here.
Don't try and look at my face. So similarly, the batsman is trying to look for it. But the thing is, and Waqar Bhai would also agree sometimes, yes, they do set you up, but there are times that they try and outswing it and it goes straight as well. So you get stuck with that as well. And what he said is absolutely right, because Shubman Gill today was certainly, foxed, because he was looking probably for his hand and where the ball's going, because he ended up playing that ball almost like that. So where he met the ball, he was expecting the ball to be in another line. Openers are trying to watch fingers, whether it's seamers or whether it is spinners, because the ball comes out of that hand. And in the hand also, it's the fingers that decide what the ball's going to do. So as a player, if you are at home, you're wanting to watch that, but it is tough. It is not one thing to watch it. Then the second thing is that you got to read it where it's going, and then you got to play that ball. So it's more instinctive, but that's how you build your instinct in life. When you're practicing, try and watch the fingers of a bowler, whether it's a seam bowler or a spin bowler, because as Nikhil says, हाथ ऐसे करते हैं तो सीधी चली जाती है, ऐसे घुमाते हैं, तो यही है सारा कुछ देखने के लिए. ये जिस तरह आपने बोला ना, यही है सारा कुछ देखने के लिए. But है ये वो बेचारे अगला जो है ना, वो यही देखता रहेगा सारा कुछ. It sounds simple for the batters, isn't it? Yeah, it's so hard for the batter. I feel so सारे bad रूल for the होने दे batter. तरफ. आपको start I have a Same here to question, question. yeah. Yeah. आमिर जे. आमिर जे. उनका हैंडल है आमिर जे, कोई 1000 नंबर लिखे हुए हैं कि उन्हें 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है. I think both teams are trying to lose to avoid Australia in the semi-final. What do you guys think? Amir, first of all, one advice: stop thinking about conspiracy theories कि ये हो जाएगा तो वो टीमें ये सोच रही थी तो ये हो जाएगा. इतनी क्यों अपनी जान, इतना क्यों अपने आप पे स्ट्रेस डालते हो? ऐसी कोई बात नहीं है. इंडिया आराम से जीत गया है. मैंने कहा था इंडिया जीतेगा, सुबह प्रेडिक्ट किया था. तो मेरा सुबह का प्रोग्राम देख लो. ये कंस्पिरेसी थ्योरी करनी नहीं पड़ेगी आपको. नहीं, उसमें भी कंस्पिरेसी ढूंढ लेंगे कि इनको कैसे पता था. है ये अगला सवाल ये आने वाले हैं. 40 साल मैंने बाल अपने धूप में सफेद नहीं किए. चले. मलक तनवीर अवान साहब, मलक साहब कह रहे हैं, wonder if sponsors don't give full suits, only jackets and shirts. ये कैसे, किसने बताया इसको? नहीं, ये साइड पे बैठा हुआ ना. ये देखो ना, निखिल की ट्राउजर की बात कर रहे हैं ना. एक दिन लाल होती है, एक दिन पीली होती है. आज कौन सा रंग है दिखाओ? आज व्हाइट में. चिट्टी. तो देखा, इसलिए वो कह रहा हूँ, मेरी तरफ नहीं देखा उन्होंने. आपने अपना कॉम्बिनेशन. आपको गुस्सा देखा किसी ने? कल आपने गुस्सा किसी ने हमें भेजा है कि भाई वो हमने बताया नवाब साहब हम पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. अजय शुक्र है मेरा नहीं देख रहा. Guys, if there is one real lord that you want to see is Waqar Yunus's. आज इज फाइन. Point? Is point today. Point. You're point उनको today, पता buddy. है 8-10 घंटे मैच चलता है. 7-8 घंटे. 2 घंटे पहले शो होता है, 2 घंटे बाद होता है. जूता इसलिए हमेशा नहीं डाल के रखता कि जूती डाल लेता हूँ. आप क्या बोलते हैं उसको? खुस्सा बोलते हैं आप. हम जूती बोलते हैं. तो वो निकाल के बैठ के मैच देख सकते हैं. जूता डाला हो पसीना हो जाता है, फिर ये ड्रेसिंग रूम में ना ये सारे भाग जाएंगे, इतनी बदबू होती है. Yeah, okay, too much information. Too much information. Drinks break. My question to all the respected panelists: a lot of overseas media is talking about advantage Dubai for India. Is traveling from Karachi, Lahore to Dubai is really such a huge issue in terms of fatigue or preparation? In my humble opinion, India would have won in any condition since they have covered all bases and have horses for courses. Guys, Drinks Break, it's a well-known X account, verified. Drinks Break 19. This is a a good team. 15 जो 16 हैं, आप देखिए एक एडिशनल स्पिनर अभी वॉशिंगटन सुंदर भी वो बाहर बैठा है. गॉड फॉरबिड कोई प्लेयर इंजर होता है, सो यू गॉट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स एज वेल. अर्शदीप हु हैज बीन डूइंग सो वेल, ही इज नॉट गेटिंग अ गेम. शमी आया, शमी ने 5 विकेटें निकाली हैं. इवन द बैटिंग इज लुकिंग वेरी गुड. आई थिंक टीम इंडिया इज द ओनली साइड दैट इज कवर्ड ऑल बेसिस गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी. Yes. Yeah, in fact, you should look at the other way. There are more distractions in Dubai than in Lahore and Karachi. If they were there, they'd probably be more focused. यार लास्ट टाइम तो कब गया था लाहौर? I mean, है? लास्ट टाइम लाहौर कब गया था? मैं जब लास्ट टाइम गया था मुझे बाहर नहीं जाने दिया, फिर भी निकल लिया. डिस्ट्रैक्शन तो कोई 2016 नहीं. मैं सैमसंग ये तो यार हार जीत पे अब चल रहा है. ये पहले से डिसाइडेड है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले डिसाइड हो गया कौन कहाँ खेलने वाला है. एंड दीज आर Look, I think apart from traveling bit, I think थोड़ी सी दूसरी टीमों के साथ थोड़ी सी कहीं ना कहीं ज्यादती शायद हो गई है. अदरवाइज आई थिंक टीमों को 6-6 दिन भी मिले हैं, ऑफ मिले हैं. अभी न्यूजीलैंड भी काफ़ी देर के बाद खेली है, साउथ अफ्रीका भी रेस्ट पे है. सो आई थिंक वो आई डोंट थिंक यू कैन रियली पिन पॉइंट ऑन दैट. बट ये ट्रैवलिंग में मे बी, बट India, I mean, they have bases covered. They have got good bowling attack, everything. spin attack, and then
they're batting in good form. अब यहाँ से ना जीतें टूर्नामेंट तो फिर अफसोस होगा. All right. Next question is from R.J. Chaudhary. R.J. Chaudhary is saying, my question to the whole panel. In general, the saying is cricket is a batter's game where a bowler could come back with just one good ball in an over, which makes me think it is a bowler's game. Would like to hear more from the panel. Basically, this is for the two of you. Yes, and I agree. We had this debate the other day as well. I've always thought that it's a bowler's game in terms of, the more opportunities that you get. Yes, in India or in Pakistan, not in Pakistan, India at least, it's the batsmen who become these big, large stars. The difference is the good days of a bowler lasts for, say, 5 minutes. 8 wicket निकाली है, total 5 minutes होगा. A good day for a batsman lasts for a couple of hours. So you think that it's a batsman's game, but one ball that you get it wrong or you run out, that's it, your day is over. Whereas as a bowler, you can get smashed all over the place for 5 balls and then get a wicket off the last ball. यार ये बड़ा relevant ठीक है question आया है. Sorry, आप आंसर कर लें विकी. जी नहीं जी ये गेम बनी तुम लोगों के लिए, बैटर्स के लिए, सिंपल इज दैट. नहीं, तुम्हें सारे जितने भी रूल चेंज होते हैं, बनते हैं, फील्डर अंदर ले आओ, फील्डर बाहर ले आओ, 2 बॉलें ले आओ, रिवर्स स्विंग को बाउंड्री फायर छोटी कर दो, बाउंड्री छोटी कर दो, तो और क्या जान लेनी है, मेरा मतलब है. नहीं वो इसलिए बनाए हैं बच्चे की जान लोगे बैट्समैन क्या? ने. रूल आप समझे ना. देखिए जरूरत क्या है, आपके पास बॉल हो, आप कोई और गेम भी खेल सकते हैं ना, लेकिन जब तक हम बैट नहीं लाए क्रिकेट नहीं शुरू होती. तो इसीलिए तो बैट्समैन क्रिकेट रूल जिसका बैट उसकी गेम बेसिकली ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं. ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं. बैट है वो सबसे पहले बैटिंग करता है. राइट जी. अमरिंदर शेख फिर वो राइट वाली बात होगी ना, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस. बट तो ये तो आज से नहीं है, पुश्तों से चला आ रहा है. जी हाँ. ये इक्वालिटी ये चलो छोड़े जाए, बहुत आगे नहीं, बोर हो गए ये लोग, चले आगे. अच्छा, अमरिंदर शेखों साहब ने पूछा है कि बड़ा जबरदस्त शो है आपका, जबरदस्त सब कुछ. मेरा सवाल ये है, और वो मुझसे सवाल उन्होंने किया है कि मैं व्हाई डू आई कॉल वसीम भाई बैंकर समटाइम्स, डज ही हैव अ बैंक इन ऑस्ट्रेलिया? बैंक होता तो मैं इथे बैठा होता. I'm actually curious why. No, you say it, you explain. No, because you told this, narrated not. this whole kissa on live commentary But you when said you were on a you- broadcast please assignment explain. test match in आप Australia. अगले दिन स्टोरी सुना तो रहे थे, एक बंदा को पर्थ में पकड़ा गया, को 2 मिलियन के उसके बैग में था. ओ वसीम भाई का रिश्तेदार सी जड़ा पड़े आए, वो इनका रिश्तेदार था. प्यून सी, वो बैंक का प्यून. आप ही बता रहे थे, मैंने तो सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम. शेखो साहब basically the एविडेंस reason कोई नहीं है. Sheikh Saab, basically the reason why I call him banker is because when he used to play in his good old days, when in his prime, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तबाही मचाते थे, तो जब ये वहाँ पे बाउंड्री पे खड़े होते थे तो पूरा जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड था वो पीछे से शोर मचाता था, बैंकर बैंकर बैंकर, क्योंकि ये क्योंकि ये बैंकर बोलेंगे या बैंकर? Banker is not the word, just use your imagination. बहुत अच्छे, अच्छा भला मासूम आदमी है, उसको भी आप कह रहे जस्ट यूज योर इमेजिनेशन. क्या चंगा भला भाई So भाई यार नहीं समझ आ basically, रही. the thing Australians had नहीं, वो it तो figured out बुलाते थे, ठीक है, was आप क्यों there was बुला रहे हैं? this guy वो कहते थे वसीम इज अ बैंकर, Wasim is a banker. So basically, the idea was that the entire Pakistan team used to bank on him to get the wickets and the breakthroughs. Yes. That's why they used to call Wasim as a banker. That's why I introduced him as a Sultan of Swing and the Swinging Sultan. अब ये ना पूछना कि मैं Swinging Sultan क्यों कहता थोड़ा हूँ. सा लंबा कर दिया वैसे. मैंने ना Too much. बस क्या करें. I have a question from Khizr. क्यों? Should bowlers be allowed to use saliva again for better swing? Saliva तो I thought COVID में इन्होंने बंद की थी because of. तो अब कोविड खत्म. तो अभी तक तो अब still तो- I believe I think they should. Yeah. Yeah. Plus they've started vaccinating balls as well. I'm just kidding. It's just With that, we're going to take a break here on the DP World dressing room. When we come back, there's more craziness on the other side. Stay with us. वो 11 बजे होता है. And welcome back to the DP World dressing room. And this is the points table for the expert predictions, where Nikhil Chopra has taken the lead, ladies and gentlemen, up with 7 points. And Ajay Jadeja, Pujara are at number 2. वो कार पकड़ भी लेगा अगले 3 मैचों में तो 6 ही आएगा भाई. So you're out of the race. लग गया फ्लूक लग गया. Yes, that is how it is. जाड़ मेरे पीछे मत लग.
मैं कितने लग गया है तो आज सुबह लग गया दोपहरी। तूने कहा था ना कि जो विकी ने कहा यही है मेरा। नहीं, मैं विकी के साथ हूँ बिल्कुल ठीक, हमेशा। फिर ठीक है। 96 से मैं नहीं छोड़ा तुझे। तू सॉरी, वाकई 88 से। तूने वाकई 96 में मुझे नहीं छोड़ा। 88 से मैं इसके पीछे लगा हूँ। All right, guys. So we're going to take a few more questions and then decide who the ball is going to go to. But right now we've got. You saw that score, the points table. ये जो ट्रक आपको हमारे इस पे नजर आ रहा है, डीपी वर्ल्ड का ट्रक जो है, हमने आपको पहले दिन से बताया है और अपने सारे एक्सपर्ट्स को भी बता रहे हैं और आप लोगों को भी बता रहे हैं कि इस डीपी वर्ल्ड के ट्रक के अंदर, कंटेनर के अंदर, we've got a very special prize for the winner of this contest. From where I think Waqar is out of that race anyways, but the three of them are still in the race very much. So the winner, we will open this container on the final day. I will open it at the back and I'm going to take out that very special prize that the winner will take from here. Now, initially यहाँ पे बहुत skeptical और you know अभी भी skeptical अभी भी skeptical हैं वसीम पाजी। पता लगे वो कंटेनर खोला उसमें दर्जन केले थे, 3 किलो माल्टे पे हैं। हाँ, वो ये सोच रहे हैं कि इस तरह करते, but I tell you, I assure you that Apex Sports and the DP World team have put their resources together. That's what I've been told by our Fakhar T20. Mian, I was told in the beginning I was told कि इसमें जो भी तोहफा तहाइफ हैं वो उनकी वो 4 हैं, बल्कि 5 आप भी बीच में जी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। तो फिर मुझे पहले बताते There ना, is मैं only one. लेट हो गया। There's only one. I told you guys right from the beginning. Take it seriously. But me lord, Yes. me lord. आहो। But it should be dressing room मतलब team work. It should go to all यार, 5. competition मतलब है 4 यार, भी नहीं कह ये रहे, नहीं 5 कहो। कह रहे हैं। आप लोग क्या मुझे competition बताएं, आप एक ड्रेसिंग रूम में एक ही तौलिया इस्तेमाल करते थे सारी टीम, तो फिर नहीं, लेकिन But आप मतलब तो how can you compare that अगर एक to तौलिया तौलिया? होगा तो एक ही यूज करेंगे ना सर। ये एक होएगा तो एक एक share ज़्यादा करेंगे। होंगे, ज़्यादा यूज करोगे। भाई एक बाल्टी Very में simple. पानी आता था तो उसी से पीते थे। हाँ, right on. Questions from YouTube. Andy Gaming G7D asks room. My question for Ajay Paji. Sir Ajay Jadeja, when you met Wasim Akram, what was your favorite memory with him when you met him the first time? Not Waqar, but him. मैं पहली बार आपसे मिला हूँगा 1992 वर्ल्ड कप में। अच्छा, that was the first time? That's the first time. नहीं, actually शारजा मिले थे। शारजा उससे Yes, 1990 Yeah. मैं खेला नहीं था उस टाइम, मिले थे जब विकी भी था टीम में, इंजी आया नहीं था तब। जी 91 में आया। हाँ, तो आई थिंक उस मुशी टाइम होगा, मुशी पहली होगा। बार देखा होगा। एंड फेवरेट तो हो नहीं सकती क्योंकि मेमोरी इनके साथ अब अच्छी है, लेकिन उस जमाने में तो मैं बड़ा हो रहा था, 85 से इनको देख रहा था ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए, उसके बाद शारजा में इतने साल देखा इनको खेलते हुए, तो you were in aura, like you are in aura of all the greats of that time. So it was always like this. And the memory that I have is actually him coming out of gym, ट्रेनिंग करके, और वो पूरी टी शर्ट भी नहीं, बनियान पाई हुई है, तो मसल, he was much stronger then. Yeah, I he don't still know. is. Yeah, you could see, and we were from, where I came from, there wasn't much, weightlifting or, muscle building and all. So you could see a man lean, and उस टाइम बाल वसीम भाई के ना वो वाले होते थे, हाँ, वो लंबे बाल। लंबे बाल, जुल्फें गिरी हुई, और लड़कियां बस वसीम भाई को लॉबी में मेरे को यार 1990 की गाल है। नहीं, बट लॉबी में जब ये चल के आ रहे थे, वहां से जिम से आ रहे Muhammad Wakara Med 3837. Hi, love the show from Bolton, England. My question is that Pakistan have about 6 selectors right now. Is that a better method, or is having one chief selector more convenient according to the panelists? I Gentlemen. think for me less is more. 6 is too many. I suppose 3 होने चाहिए, उनमें से एक चीफ सेलेक्टर होना चाहिए। अगर चीफ सेलेक्टर नहीं होगा तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी मुश्किल होगी, फिर अगर यार तू ये रख ले, मैं ये रख लेता हूँ। सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। आई थिंक इट्स माय ओपिनियन, गलत भी हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आई थिंक। सिंपलर चीज़ें होंगी, आसान होंगी। जब कोई इंचार्ज नहीं होगा ना तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बिल्कुल ऐसा कहाँ से? बोल्टन से? जी, बोल्टन से थे। इंग्लैंड। क्या नाम बताया? बकारा। वकारा जी, बोल्टन से आप हैं तो फिक्र इंग्लैंड की भी कर लें, वहाँ पे सिलेक्टर क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान से पहले बाहर हो गई थी। Yeah. वहाँ पे एक ही सिलेक्टर होता है ना। I don't know. हाँ, कोच है वो रॉब की है, और राइट
Luke Wright, I think, one of the selectors. Three. Luke Wright, opener. Yeah. Hey, Bolton. Okay, right. Babar Rizvi साहब का सवाल है. Great show, thanks to provide entertainment. Can you please ask Waqar, who is a mentor in Pakistan Cricket Board, what happened to those 150 cricketers that were handed over to these 5 mentors, and Chairman PCB confidently said, we will find top players from here. Yeah, they're there. I mean, हमने पहले बताया ना, मैंने उस दिन भी शायद एक्सप्लेन किया था कि 2 टूर्नामेंट्स T20 के और वनडे का टूर्नामेंट हुए हैं, बट इट टेक्स टाइम. It's not going to happen overnight. वो लड़के 5 टीमों में हैं. We played 2 tournaments. We're going to play 4-day cricket now. So hopefully we're going to, develop them, groom them, and try to make it, तो मेरा available question, for the team. एक और इससे क्वेश्चन ये आता है कि आपने जब जो भी उसमें टैलेंटेड लड़के देखे, सारे टैलेंटेड हो गए, जो स्पेशल नजर आए कि रेडी, ऑलमोस्ट रेडी हैं, वो क्या आपने आगे पास किए सारे मेंटर्स ने कि ये लड़के हैं, प्लीज हैव अ लुक टू सेलेक्टर्स? कम्युनिकेशन I think अभी आपने जवाब दिया ना कि सेलेक्टर्स इतने सारे हैं कि वो they go and see all games, and they were always in Faisalabad. Even जब वो अपना Gary Kirsten भी बना था, he also came to Faisalabad. अभी selectors पिंडी भी आए थे. So it's their job to pick the team. Their No, I job is to understand that, select but the होता ना team. कि यार आप सेलेक्टर्स को एक रिपोर्ट से मुराद अब कहते हो यार ये 2-4 लड़के आई थिंक रेडी हैं टू प्ले I फॉर think पाकिस्तान. we have given our reports. We have And given one of our the mentors reports. played we with have- the team. हाँ जी. Am I right? One of the mentors played. One of the एक मेंटर खेला भी था. Shoaib Malik. I think so. He played. Did he दो play? खेले थे. सरफराज भी खेला था. Sarfraz bhi khela tha. Okay. Sarfraz also played. Yeah. So they were playing mentors basically. Okay. All right. Okay. With that, Jay Shukla is saying, #AskTheRoom, can I win the DP World Truck since I've already won the ball? I'm sorry. This is the only truck we have, and we need it for the future events as well. So my apologies. शुक्ला जी ट्रक का की करना और वैसे करना क्या आपने शुक्ला जी इस ट्रक का? हमारे पास एक ही है. हमने रखा है अपने लिए. जो अस्सी कर रहे हैं. जो हम कर रहे हैं. Basically, सारे शुक्ला जी बात सारे कपड़े ना मांग लें. Next up. But that's an opportunity we have. Yeah. Kapde, because there'll be a lot of people who'd want a jacket worn by Wasim Akram. Maybe we could do a charity. We can sign we it, can yeah. sign, and we could add to something and raise something from that and do some good work. I've always maintained that for a good cause we can absolutely. If और you आपके कपड़ों से डबल मजा आएगा. एक तो कपड़ा है नाल तंबू भी बना लोगे. tent भी आप लगा लेकिन सकते तो आ हैं. लेना. हाँ, तो आ लेना. And here's the good thing is, the best thing is that we can actually, for a good cause. Yeah. I can start with a jacket from Wasim and Waqar, And I signed can by start them. with their shirts. I will bid for it. Whatever the bid comes, I'll add ₹1 more than that and take it and I was share with it. Wasim just a few months ago on a fundraiser in the United States. Yeah. And इनकी signed jersey जो थी ना वो आई हुई थी तो उसके ऊपर bid वो मैं auction कर रहा था तो crowd जो था ना वो $15,000 से $18,000 $20,000 $25,000 पे आके ना थोड़ा ना मामला स्लो होना शुरू हुआ. तो मैंने कहा कि यार अब एक ही शॉट मारते हैं. मैंने कहा सुने लेकिन $25,000 तो ये बिड लग गई है. अगर कोई मुझे इस हॉल में $50,000 देगा तो जो शर्ट इन्होंने पहनी हुई है मैं वो भी आपको उतरवा कर दे दूंगा. मिले नहीं, they were no takers. Really? Unfortunately. For a good cause, why not? That's weird. Yeah, that's Yeah, weird, that's right? very weird. और तुसी मिर्चा लाओ. Suttu haka. All right, guys, it's time to decide who's going to win that DP World Ball. So, which one? I think the first one, Waji Abbas, who made Yeah. you act, was a good one. Yeah, sure. Yeah. दिनरात चौहान Yeah. Yeah, Mandwa wala. That's Mandwa wala, right? Yeah, Yes. Yes. I am always with the team. You're always with the team. You're always smiling and all that. Well, congratulations, Waji Abbas. You've just won yourself a DP World signed ball. कोई भी एक दे दें. All right, thank you very much. Yeah. Here's the ball. It's signed. It's all set, ready to go. It'll be dispatched to you by DP World. Somebody from production will get in touch with you to your X handle from where you sent us the question, message, comment, and you're going to win that. So congratulations to you, Waji. With that, we are at the end. ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਟਰੱਕ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲ. नहीं, तुसी look what I go through on this. देखो देखो, अब ये- Look what you make me go through. Continuity बड़ी जरूरी होती है. Here's the DP World sign ball, and I have to set it on the truck as per the law of the land. Supposed to do that. With that, we're going to take a break here. When we come back, there's more on the other end. Don't go away.
There you have it, the sign ball all set on the DP World truck to be dispatched to our winner of today. Thank you very much for participating in hashtag Ask the Room. I'm Fakhar Alam, you're watching 10 Sports. And with that, we're coming to the end of the day. Tomorrow is an off day because when we come back on Tuesday, we have the first semi-final. This is what's coming out your way from the Ring of Fire in Dubai. It is going to be India versus Australia. It's going to be a great game of cricket. And it is going to be something special. So do join us on the 4th of March. We're going to be back on air, Pakistan Standard Time, 12 noon. And whichever time zone you're at, join us, tune in. And all of those who watch on YouTube, thank you for watching. Keep watching and keep sending us your comments and your questions. So, guys, for you, it's going to be a nice day. You know, इनकी तो lottery लग गई है. Yeah, day off ये for तो Nikhil Paji, Vakar, Jadeja Paji, they're going to be playing golf. And what about you? And me and Wasim Be honest, are... be honest. Be honest? Be honest. Right. Me and Wasim are going to be on a flight this early morning. We're going to be leaving at 5 a.m. Ab se kuch der baad. We're going to be collected and taken to the airport from where we'll be heading into Pakistan. And me and Wasim Akram are going to be participating in bringing the DP World Beyond Boundaries initiative to Pakistan. So we have an all-day activity. We're going to be meeting a lot of young children who we're going to be giving away kits to and unveiling the container that has already reached Pakistan. And then in the very same day, which is evening, we're going to be on a flight back to Dubai, and we will be here at around 1:30 a.m. back in your hotel and my home. Great. And back here at 9 a.m. to bring you the semi-final. ये show तो चल आप ही जरा नहीं- बताएं कि किसके आपके आसानी बगैर है? शो ये चल ही नहीं सकता आना ही पड़ेगा डॉक्टर साहब ने तो इतना मुश्किल कर दिया है जैसे यहाँ से पैदल जा रहे हैं कराची और पैदल प्राइवेट जेट में बैठना है वहाँ लैंड करना है हाय। अच्छा काम करना है अच्छा। दिन में कोई यू नो इतना होली मंथ है उसमें आप भला काम कर रहे हो कुछ शेयर कर रहे हो फिर प्राइवेट जेट में बैठ के आना है Such a hard आप तो day. कुछ अच्छा काम कर रहे हैं सच कम हार्ड थे मुश्किल है कम थे मुश्किल है किसी को बात somebody ठीक has कर to रहे do हैं। it. नहीं मतलब देखने Somebody का has to do it. Yeah. We're doing it. You're not. You're playing golf. You guys are playing golf. We are the ones who are doing all the work. I think we need You to are the speak to blessed production. ones. We have to talk to the production. है साढ़े हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए अगली बार. Yeah. ठीक है. All right. सारा हिस्सा ही तो है Outstanding. सारा You know, हिस्सा we are very lucky today. We've got our DP World team here, Arjun and Neeraj. We welcome you to the studios. Thank you. Great support from Yeah, DP before World. you go, can I just leave one message for people asking a lot of questions to me? Oh no, sorry. I have a question that I need to Yeah, ask you if yeah. I'm not. So आज मैं बार-बार देख रहा था चूंकि रमजान शुरू हो गया. So a lot of people have been asking कि वसीम भाई, what do diabetic people have to do during Ramadan? How do we observe a fast? Or you know, what are the precautions we need to take? बिल्कुल सबसे पहले तो एक दफ़ा फिर रमज़ान मुबारक सबको बड़ा बाबरकत महीना है और मैं समझता हूँ कि हर कोई डायबिटिक जो है वो रोज़ा रखना चाहता है मेरी एक एडवाइस है प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछिए वो आपको बताएगा एग्जैक्टली अगर आपने रोज़ा रखना है कितनी इंसुलिन लेनी है आपने अपनी सहरी पे और कितनी अफ्तारी पे वो आपको एग्जैक्ट बता सकेगा और लोगों की बात ना सुने गो टू प्रोफेशनल गो टू योर डॉक्टर एंड ही कैन गाइड यू टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एंड आई थिंक उसके बाद आप थोड़े रिलैक्स भी हो जाएंगे आपको पता होगा कि डॉक्टर ने मुझे ये बताया है Yeah. मैंने इंसुलिन में कम करनी है ज़्यादा करनी है ही कैन एक्सप्लेन इट बेटर Yeah. सुनिए वकार भाई, फौरन डॉक्टर नुमान नियाज़ से राब्ता करें. He will give you better direction. डॉक्टर साहब को तो आपने भेज दिया वीडियो ना मैंने भेज दिया. उन्होंने एक जवाब दिया है आपके बैट के लिए. वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ. डॉक्टर साहब मुबारक हो यू नो 15वीं किताब 15th book coming out to And, Dr. Numan Niaz. Yeah, ये नाम की congratulations. किताब का नाम In another realm. ठीक है ना मेरा एग्जाम लिया आपने ये नहीं, वकार नहीं, भाई ने जाते जाते नहीं, मुझे याद हुआ है कि आपका एग्जाम कोई नहीं ले सकता All right, आप सिर्फ thank you. हमारा एग्जाम लेते हैं। Thank you, Nikhil. Thank you, like always, outstanding. Thank you, sir. I will see you day after tomorrow. Thank you, Vakar. Enjoy sir. your Thank golf you. tomorrow, Yeah. and thank you, Ajay Paji. Thank you really for having appreciate us. it. Yeah, and it's and been a Wasim, pleasure. sorry, we have to bear each other for another 24 hours. I'll be fine मैंने तेरी फिक्र है कि तेरा मुंह एडा वड्डा होना है सवेरे 5 बजे भाई तुसी मैंने चुक के लेके जाना है you I have to doubt take I me. can do गोदी में that. बिठा के No. तो मुझसे तो सुबह इन ऑपरेशनल होगा गोदी में बिठा गोदी is bit much All right, folks, with that, here comes the end. Thank you so much for joining us wherever you are in the world. We are really, truly grateful for all your viewership, your comments, your appreciation. Even your criticism is more than welcome here because in the DP World dressing room, we're open about everything. And with that, all I can say is, Piti Pulchune, Pulchunke, Piti Tikare, Tikare, Piti Pulchune. Good night.